ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل شاہ ہاشمی۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے کرپٹ کون، اور ہمارے پروگرام میں شامل ہیں سینئر تجزیہ نگار علی اکبر بڑیچ۔ آج ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ کس طریقے سے محکمہ نہار کے اعلیٰ افسران اور با اثر ذمہ دار کس طرح مل کر پانی چوری کرواتے ہیں۔ جی السلام علیکم اکبر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے محکمہ نہار کے اعلیٰ افسران ہیں اور یہ جو بااثر ذمہ دار ہیں، یہ کس طریقے ملی بھگت کے ساتھ پانی چوری کرواتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں عادل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام کرپٹ کون میں مجھے مدعو کیا، اور آپ نے جو بہت اچھا سوال کیا ہے کہ محکمہ نہار کے افسران جو ملی بھگت کے ساتھ جو بااثر ذمہ دار ہیں ان کو پانی کیسے چوری کرواتے ہیں۔ اور مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پانی بھی خود چوری کرواتے ہیں اور ان کے اوپر ایف آئی آر اور استغاثہ بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی پانی بھی خود چوری کرواتے ہیں اور ان کے اوپر ایف آئی آر بھی خود ہی کروا دیتے ہیں؟ ایف آئی آر بھی خود ہی کرواتے ہیں۔ اچھا، اور ایسی ایف آئی آر ہیں، میں آپ کے پروگرام میں یہ چیز دکھانا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کی وسالت سے۔ جو ذمہ دار تھے فوت ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں پانی وہ چوری کرتے ہیں، اور ایف آئی آر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ والد صاحب جہاں چاچا تایا کوئی بھی رشتہ ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے، لیکن ایف آئی آر میں ان کا نام آج بھی درج کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے افسران بالا کو، جو ہمارے ضلع دار صاحب ہیں وہ اپنی سیٹ کے اوپر ایسے لپٹے ہوئے ہیں کہ وہ گوارہ ہی نہیں کرتے کہ ہم اپنے ان حلقوں میں جا کر ان ذمہ داروں کو چیک کریں کہ اس سے پہلے جو فوت ہو چکے ہیں ذمہ دار، ان کے اوپر جو ہم استغاثہ دیتے ہیں سب سے پہلے اس کا پتہ کریں کہ کیا جس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے کیا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے یا نہیں ہے؟ موجود بھی ہے۔ اچھا سر، ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو بیلدار جسے کہا جاتا ہے، اس کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیئر ٹیکر سمجھ لیں جی کہ جو محکمہ نہار کی پٹری ہوتی ہے، جو محکمہ نہار کا پانی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک اپنا لیمٹ ہوتی ہے، مثلا کہ ایک برجی سے دوسری برجی تک، ایک جیسے رکھ برانچ ہے، اس کے بعد ہمارا ڈشکور ڈسٹی ہے، پھر سرولہ ڈسٹی ہے، راجبہ آتا ہے، بہت ساری ایسے چھوٹے چھوٹے راجبہ نہر سے نکلتے ہیں، ان کے اوپر ان کے ایس ڈی او بھی علیحدہ ہے اور ان کے اوپر بیلدار بھی علیحدہ ہیں۔ اور سر یہ جو جس کو وہ جہاں سے پانی گزرتا ہے وہ پنجابی میں اسے کہتے ہیں موگے جسے کہا جاتا ہے، وہ سر کس طریقے سے توڑے جاتے ہیں؟ یہ تھوڑا سی مہربانی۔ ایک ذمہ دار کیا مثلا پانی کا ٹائم ہوتا ہے بااثر ذمہ دار کا، پانی اگر ایک قلے کا 12 منٹ ہے وہ موقع کو اوپن کر دیتا ہے، اس سے پانی کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو ایک قلہ آدھے گھنٹے 25 منٹ میں سراب ہونا ہے وہ 10 منٹ میں 7 منٹ میں ہو جائے گا۔ پانی کی تعداد میں پانی کی رفتار تیز ہو جائے گی، رفتار تیز ہو جائے گی، اور وہ جو اپنا ذمہ دار ہے اس کو زیادہ فائدہ مل جائے گا۔ تو کیا سر یہ جو ہمارے ایس ٹی او ایکسین ہیں، کیا ان کو ان بات کی خبر نہیں ہوتی کہ یہاں کے وہ پیسے لے کے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کیا ہے، ان کی کیا ڈیوٹی ہے، کیا ان کی مصروفیات ہونی چاہیے ڈیوٹی پہ، وہ کیا ڈیوٹی کو سر انجام دے، کیا ان کو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی؟ سر جو بیلدار ہے اس کا کام ہے کہ اپنی جو اس کی ڈیوٹی ہے، جس ایریے سے لے کر ایریے تک جو اس نے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ ہم اپنے پانی کو چیک کرنا، اپنی پٹری کو چیک کرنا۔ وہ گورنمنٹ سے اسی بات کا فیول لیتے ہیں کہ وہ وزٹ کے لیے نکلیں۔ جو بیلدار ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ اس کو اگر کوئی چیز نظر آئے اس نے اپنے اوور سیر کو بتانی ہے، اوور سیر نے پھر تار کرنی ہوتی ہے ایس ڈی او صاحب کو، ایس ڈی او صاحب نے اس پہ کارروائی کرنی ہوتی ہے، اور اپنے جو ایکسین صاحب ہے اس کو آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ جناب اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک ہمارا پانی چوری ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے موقع پہ جا کے ایک وہ موگا بند کروانا ہوتا ہے، دوسرا اس موقع کے اوپر جتنے بھی ذمہ دار آتے ہیں ان کے اوپر پھر وہ ایف آئی آر دی جاتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، پانی توڑنے والا اور پانی کا رکھوالا
ये दोनों ही मिलके जो काम करते हैं। सर ये देखें ना किस तरीके से, कि मैं आपको नाजरीन भी देख रही है कि किस तरीके से वो जो नहर की पटरी है वो टूटी फूटी है, वो किस तरह से बंद की जाती है। और मैं आपको बताता चलूं कि वो जो आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि वो यहाँ पे हमारे पास ओवरसीर हैं, एसडीओ, एक्सीएन, तमाम की लिस्ट मौजूद है, लेकिन कोई भी ड्यूटी देता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि दिल साहब के बारी नजराने लेकर ये अपने दफ्तरों में रहते हैं। पंजाब हुकूमत है, इनके ऊपर लाखों का पेट्रोल फ्यूल की मद में देते हैं, उसका विजिट करने के लिए इनको फ्यूल दिया जाता है, अपने घरों में अपनी अय्याशी में इस्तेमाल करते हैं। और बेचारे बेलदार, वो कोई ईमानदारी से काम करता है तो उसकी ड्यूटी चेंज कर दी जाती है या उसको निकाल दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा दिया जाता है कि आप अच्छे से ड्यूटी नहीं कर रहे, क्योंकि वो ईमानदार है। और जो बेईमान है, जो इनके साथ मिल के काम करता है, वो साला साल वहाँ पे ड्यूटी करता है। जो करप्ट होता है वो ड्यूटी करता है। बिल्कुल। और सर वो हमने एक देखा है कि छोटे छोटे उन्होंने पुल से बनाए हुए हैं नहर के ऊपर, और वो बिना किसी परमिशन के, बिना किसी कह लें कि इजाज़तनामे के, वो किस तरह ये कर लेते हैं, खुद की बना पे ये कर देते हैं, या कि एसडीओ एक्सीएन की मिली भगत के साथ होता है सारा कुछ? सर सबसे पहले समझ लें कि ये नहर है जी, ठीक है, इसकी जो पटरी है, इसके ऊपर अगर कोई पुल और पुली बनेगी, जी जी, वो महकमा अनहार की इजाज़त और एनओसी के बगैर नहीं बनेगी। बेशक। लेकिन होता क्या है कि अगर मैंने पटरी बनाई है, मैंने बेलदार को कहना है कि भाई आपको ना मैं एक गुड़ की बोरी दे रहा हूँ, ये चावलों की बोरी दे रहा हूँ, अच्छा। या कुछ ऐसा तोहफा दे रहा हूँ नजराने की शक्ल में, माशाल्लाह। भी आपने ना आला अफसरान तक उसको नहीं पहुँचाना। वो पुली बन जाती है। जब एसडीओ साहब वहाँ से गुजरते हैं, वो पूछते हैं ये पुली किसने बनाई, तो वो कहते हैं कि जनाब ये फलां चौधरी साहब हैं, उनकी ये पुली है। वो एसडीओ साहब कहते हैं यार इसने मुझसे तो पूछा ही नहीं, तुम कौन होते हो ये पुली बनाने वाले, तुमने क्यों बनने दी। वो अपने बेलदार को कहता है, उसके ऊपर चढ़ाई करता है, फिर उसके बाद वो बेलदार उस चौधरी के पास जाता है, और यार अब एसडीओ साहब को पता चल गया है, आप ऐसे करें एसडीओ साहब को मिल लें। अच्छा सर अकबर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा मेहरबानी कि वो जो नहर की पटरी होती है वो गवर्नमेंट से कितनी मंजूर की जाती है, आप बता सकते हैं थोड़ा? सर इसका जो स्क्वायर फुट के हिसाब से इसकी एक जो प्राइस है या एक लिमिट है, वो स्क्वायर फुट है। अगर वो पुली जितनी भी चौड़ाई में लंबाई में होगी, वो हुकूमत ने एक लिमिट रखी हुई है कि इसके मुताबिक वो उसको जस्टिफाई करेगी। जो एस्टीमेट बनेगा वो ओवरसीर ने उसका एस्टीमेट तैयार करना होता है, फिर एसडीओ और एक्सीएन साहब ने उसको अप्रूवल देनी होती है कि जी ये जो हमारा पानी है उसमें रुकावट नहीं बनेगा, आप इस पुली को बना सकते हैं। सर हम अक्सर देखते हैं जब गुजरते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल गिर जाने का, गाड़ी के गिर जाने का खतरा होता है, वो बिल्कुल टूटी फूटी पटरी होती है सारी की सारी। अभी भी वीडियो में भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, और इसकी वजह से बहुत सारे हादसा भी हो चुके हैं। देहाती लोग, गांव के लोग होते हैं, वो जो गुजरते हैं आते जाते हैं, राहगीर जो है उनकी गाड़ियां उलट पुलट जाती हैं, बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसके बारे में सर थोड़ा आप बताएं कि ये किसकी जिम्मेदारी है, ये बेलदार की जिम्मेदारी है, ओवरसीर की जिम्मेदारी है, एसडीओ एक्सीएन की जिम्मेदारी है? हमें तो यूँ लगता है जैसे किसी की जिम्मेदारी ही नहीं है, ये शायद के वहाँ से गुजरने वाले नाजरीन की जिम्मेदारी है, या वो जो राहगीर है उनकी जिम्मेदारी है। हमारे ख्याल के मुताबिक तो कोई भी जो आला अफसरान है वो तो इस चीज़ पर गौर ही नहीं कर रहा ना। सर जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, उसके बाद जो भी हुकूमत आई है, जी जी, हुकूमत को देखने की बजाय अपनी पड़ी हुई, जो हमारे अफसरान बाला हैं वो पंजाबी में जैसे कहते हैं अपनी मौजें लगी हुई हैं, ठीक है, उनको पूछने वाला कोई नहीं। अब मैं खुश हूँ, मुझे क्या। हाँ जी, ठीक है, उनको पूछने वाला ही कोई नहीं, ठीक है, उसके ऊपर केयर टेकर ही कोई नहीं होगा, जब वो उसकी शिकायत ही कोई नहीं सुनेगा, ठीक है, उसको चेक ही कोई नहीं करेगा कि आपको लाखों का पेट्रोल दिया जाता है एक विज़िट करने के लिए, आपका बिल जो लॉग बुक पे आप लिखते हैं कि मैंने इस जगह का आज विज़िट किया है, इतना फ्यूल लगा है, इतनी मेरी एडजस्टमेंट, जो मेरी जो गाड़ी का टेक्नीशियन का कोई भी जो
अपना इलेक्ट्रिशियन का बिल बना के पेश करते हैं। ये आज हमारे टायर जो हैं वो गाड़ी के टायर लाखों के हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ें ये अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। आप पटरी पे नहर और सर की जिस पटरी पे तरीके से जाके ये देखें। देखिए कि नाजरीन भी देख रही है किस तरीके से नहर जो है वो गंद से भरी हुई है, इसको कौन सफाई करता है और ये कितनी देर बाद इसकी सफाई होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो सालान साल गुजर जाते हैं, नहर में कोई सफाई का कोई एहतमाम ही नहीं है सर। ये देखिए कि किस तरीके से पानी के ऊपर वो भारी भारी वो जो है वो सतह के मुताबिक वो जम जाती है, डस्ट भी और शॉपर वगैरह, ये वो बहुत सारे गंद पड़ा होता है। इसको सफाई करने की किसकी ड्यूटी है और ये कब की जाती है सर? मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सर जो बेलदार हैं उनका काम होता है कि महकमे जो नहर में कोई भी कूड़ा शॉपर वगैरह या कोई लकड़ी वगैरह जैसे कुछ भी पत्ते वगैरह ये कुछ भी वो जो शाखें वगैरह होती हैं, शाखें दरख्तों की वगैरह गिर जाती हैं, वो अगर गिरें तो उनका काम है उसको उठाना और चेक करके उसको बाहर बाहर निकालना। बेशक। लेकिन होता क्या है कि साल बाद जो बंदी आती है, लाखों रुपए का बिल बनता है उसकी सफाई बरम निकालने। उसको कहते हैं जो नहर के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह पे जब मिट्टी के बड़े बड़े जैसे ढेले बन जाते हैं और उसके किनारे पर मिट्टी जो बहुत सारी जम जाती है उसको बरम कहते हैं। वो उस बरम को निकालने के लिए इन्होंने लाखों रुपए का एक बजट बिल जो पास करना होता है हमारे एक्सीएन साहब ने और एससी साहब ने। इसका जो ओवरसीर होता है जिसने एस्टीमेट लगा कर देना होता है जी जी वो मिलकर ये सिर्फ एक कागजियात तक होता है, ठीक है। मैं आज भी आपको दिखा सकता हूँ कि जो पिछले साल इन्होंने नहर से वो बरम वो मिट्टी निकाली होगी वो आज भी वहाँ पे किनारे पे पड़ी होगी और उसका जो यानी बिल जो एक साल पीछे निकाली वो वहां की वहां ही पड़ी वहाँ हुई, की वहाँ पड़ी, वो पहाड़ बन गया। वो पहाड़ वही ढेले वही जो मिट्टी के सारे फिर नहर में गिरते हैं, उसके बाद उसको ही दोबारा निकाला जाता है। उसको इनका काम होता है बरम को निकाल के किसी गैर महफूज जगह पे उसको छोड़ना, उसको लेकर वहाँ पे फेंकना होता है और उसके ऊपर ट्राली जो उसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक्स्ट्रा जो मैदान में छोड़ मशीनरी दें। इस्तेमाल करते हैं निकालने के लिए, उसके ऊपर लाखों रुपए का ये बजट बना के पेश करते हैं कि जनाब हमने इस नहर से इतनी मिट्टी निकाली है और हमारा इतना खर्चा हो गया है। इन्होंने करोड़ों रुपए इस मद में लेने होते हैं। ये समझ लें कि आज के दौर में अगर आपने कहना है ना कि मैंने पाकिस्तान का कर्जा उतारना है जी जी तो आप एक ही महकमे से उतार सकते हैं, उसका नाम है महकमा नहार। जी 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 हमारे जो बेलदार हैं वो बहुत सारे ऐसे बेलदार हैं जो ड्यूटी पर ही नहीं जाते और उनकी हाजिरी लगती है और महाना वो अफसरान बाला को कमीशन देते हैं अपनी तनख्वाह से और घर बैठे तनख्वाह लेते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत सारे बेलदार अपने घरों में अपनी बहुत सारे फैक्ट्रियों में काम करते हैं अच्छा जी, और तनख्वाह वो सरकारी ले रहे महकमा हैं निहार के इदारे में उनकी हाजिरी मुसलसल के तौर पे लग रही है जी। यानी वो ड्यूटी पे हाजिरी के तौर पे वो पाए जा रहे हैं जबकि वो गैर हाजिर है बिल्कुल है और वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चाहे काम। किसी इंडस्ट्रीज में या कोई भी दुकान शॉप वगैरह। जी। अच्छा तो सर इसकी इनके जो एसडीओ साहब हैं, एक्सीन साहब हैं, जो इनके अफसरान है, क्या उनको नहीं खबर होती सर ये कि सर बेलदार तो मौजूद नहीं? इन सबको पता होता है लेकिन ये साबी काने होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि बेलदारों के साथ मिलकर तो ये पानी चोरी करवाते हैं, बेलदारों के साथ मिलकर तो ये जो बरम है जो वहाँ का गंद है निकालना होता है, उनके साथ मिलकर ये करोड़ों रुपए तो उनके नाम से खाते हैं, ठीक है। जब भी कोई काम होता है जो मशीनरी से काम लेना होता है वो बेलदारों से लेते हैं, तो फिर बेलदारों की जब मौजें लगती हैं वो अगर एक साल में एक माह काम कर भी लेते हैं तो बाकी जो 11 माह वो किधर जाएंगे? वो किधर जाए? वो अपनी इजाशी करते हैं फिर और अफसरान बाला अपनी करते हैं। जी बहुत शुक्रिया अली अकबर बड़े साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपनी कीमती लम्हात में से आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम जो कि हर वीकली प्रोग्राम होगा क्रिप्टकॉन, और आपने
یہ خود بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اب کرپٹ کون ہے۔ آپ کو جس طریقے سے دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ کس طرح سے ہمارے اعلیٰ افسران محکمہ نہار کے اور ذمہ دار جو با اثر ذمہ دار ہیں ان کی ملی بھگت کے ساتھ ایک تو پانی کس طریقے سے وہ چوری کروایا جاتا ہے وہ بھی ناظرین نے سب دیکھا سنا۔ اب آپ بھی فیصلہ کریں گے کہ کرپٹ کون ہے۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، کیمرہ مین ریاض احمد کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل شاہ ہاشمی۔ اللہ حافظ۔